Good evening, students. Today we are going to discuss the chapter of Laplace transformation. The transformations, where it is uses, what is it use, what is its functions, and how we will use it. First of all, which subject in which year you will get this. So for BSc and BTech students, it is a very important topic, and you should know how to transform the equations. Why it is necessary? Because sometime we have discussed some of typical differential equations. So for solving it, we'll use some transformation like Laplace, other was Fourier transformation, Z transformations. So for furtherly इन सबको मैं आगे करवाऊँगा, लेकिन सबसे पहले आज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेक्चर वाइज लेक्चर करेंगे. तो आज फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, देन इट्स यूजेस और सब कुछ जनरल जो मेन इसके फॉर्मूलाज है, हाउ दे विल ड्राइव इट एंड व्हाट इज इट्स यूजेस, वी विल सी हियर. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, the definition, let ft be a function of variable t, be a function defined on for all t is greater than or equals to 0, then Laplace transformation of the function ft is defined as L is the operator, Laplace operator, L of the function ft, and Laplace transformation of the function ft, which is represented in the form of s, can be get by the integration of e to the power minus st of ft dt. Here L is, as I told you, L is the Laplace transformation operator, and es minus of st is always known as the kernel of the equation. Where it is used? It is used to transform partial differential equation to ordinary differential equation, and from ordinary differential equation to algebraic equation. इससे क्या होगा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप में बहुत टिपिकल होती हैं, इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इसीलिए सॉल्व हो जाती है थोड़ा सा. और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर लूँ तो वो और भी सिंपल हो जाएगा, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं. इट इज़ आल्सो यूज टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस and to find the particular integral of differential equations directly without using its general integral. Clear? इसीलिए हम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही यही है कि टिपिकल चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर दो इजियर में और फिर उसे सॉल्व कर लो. नाउ अगर इतना समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, इसे मिलाते हैं और यहाँ पे अब सीखते हैं कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के ट्रांसफॉर्मेशन. पहले इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एलिमेंट्री functions. First, for this, what is the Laplace transformation of a constant function? Means I have to find out Laplace of a function's a constant value c. Then by the definition of Laplace transformation, 0 to infinity e to the power minus st, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स. एज आई सेड, इट इज 0 to infinity e to the power minus st of f of t dt. So here the f of t is c, तो it is c dt. आपको इंटीग्रेशन करना तो बहुत अच्छे से आता ही है, तो वी कैन से c इज द कांस्टेंट. बाहर निकाल लाते हैं, इसका इंटीग्रेशन मेरे पास क्या हो रहा है, e to the power minus st upon minus s from 0 to infinity. By applying the limits, upper limit and lower limit, I will get e to the power minus
s infinity upon minus s minus of e to the power minus 0 or you can say 0 upon minus s. आपको पता है e to the power माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? e to the power इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी होता है. तो e to the power माइनस इन्फिनिटी क्या होगा? 1 by infinity which is equals to 0. So it is c e to the power 0 is always equals to 1 minus से प्लस हो गया means 1 by s or you can say it is nothing just c by s. So Laplace transformation of any constant function is always equals to c by s. Clear? What about Laplace transformation of t to the power n? It can be written as 0 to infinity e to the power minus st t to the power n dt. And suppose st is equals to u, then s dt is equals to du, or you can say dt is equals to du by s. यहाँ से हम कह सकते हैं t will be become u by s. Apply it, you will get 0 to infinity e to the power minus u into u by s to the power n into du by s. यहाँ हम देखेंगे s फंक्शन कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज x to the power n plus 1 0 to infinity e to the power minus u to the power n du. अब आपने बीटा गामा फंक्शंस पढ़े, वहाँ आपने पढ़ा था 0 to infinity e to the power minus s to the power n minus 1 ds is equals to गामा n. इसे यहाँ अप्लाई करने से पहले इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें तो इट विल बिकम 0 to infinity e to the power minus u to the power n minus n plus 1 minus 1 of du. By applying this, it will become 1 upon s to the power n plus 1 and it is gamma n plus 1 means gamma n plus 1 upon s to the power n plus 1 or gamma n plus 1 always equals to n factorial. So it is n factorial upon s to the power n plus 1. So I can say Laplace transformation of t to the power n can be written as two form. First is n factorial upon s to the power n plus 1 or gamma n plus 1 upon s to the power n plus 1. Now how will use this? Let us see. If I want to find the value of Laplace transformation of t to the power 2, then it is by the formula of n factorial. You can say 2 factorial upon s to the power 2 plus 1 means 2 by s cube. Now directly t to the power 3, then it is 3 factorial upon s to the power 4. You can say 6 upon s to the power 4. But what about Laplace transformation of t to the power 1 by 2? Now here is some problem because factorial of 1 by 2 you can't calculate. To use this one, it will become gamma 1 by 2 plus 1 upon s to the power 1 by 2 plus 1. It is one gamma 3 by 2 upon s to the power 3 by 2. You know gamma n plus 1 is equals to n factorial. तो अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास आएगा 1 by 2 gamma 1 by 2 upon s to the power 3 by 2. And you know gamma 1 by 2 always equals to root pi. So it will become 1 upon 2 s to the power 3 by 2 और ऊपर अंडर रूट पाई. दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t to the power 1 by 2. कहने का मतलब ये, कभी भी अगर फंक्शन की पावर फ्रैक्शन में हो तो यूज़
दिस वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। और अगर फंक्शन की पावर सीधे एक फ्रैक्शन में एक वैल्यू दी हुई है नेचुरल नंबर्स में ही है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। व्हाट अबाउट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e to the power at? So by the formula it is written 0 to infinity e to the power minus st into e to the power at dt. यहाँ 0 to infinity it will become e to the power minus s minus at dt. By the integration I can say it will become e to the power minus s minus at upon minus of s minus a with the limit 0 to infinity. As you know, e to the power infinity is always equals to infinity, then e to the power minus infinity become 1 by infinity means 0 and e to the power 0 is 1. अप्लाई करें इसको, t की जगह वैल्यू रखनी है, then it will become कितना आएगा मेरे पास, जब ये इंफिनिटी रखूँ तो 0 जाएगा, जब 0 रखूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 1, तो ऊपर आया 1 अपॉन s माइनस a. इट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर at. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ड्राइव करना मैंने सिखा दिया, लेकिन आगे यूज करेंगे इसको बहुत ज़्यादा। नाउ नेक्स्ट, इफ आई वांट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन at, इससे दो तरीके हैं, या तो इंटीग्रल वाला यूज़ करो, या अभी मैंने जो e टू द पावर at बताया उसका यूज़ करो। कैसे? वी नो दैट e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है ना ये। तो अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट विल बिकम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा ए टी। यहाँ थीटा मेरे पास at है और ये मेरा इमेजिनरी पार्ट होता है, तो मैंने इसलिए इमेजिनरी लिख लिया। मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ et यस। और अभी आपने पढ़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू पावर at क्या होता है, 1 अपॉन s माइनस a। यहाँ अप्लाई करें, मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन s माइनस आयोटा a। यहाँ a क्या है, पूरा आयोटा a। इसे रैशनलाइज करेंगे, 1 अपॉन s माइनस आयोटा a, तो s प्लस आयोटा a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो आपके पास आएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ s प्लस आयोटा a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ना इधर से देखा जाए तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, इसको लिख सकता हूं मैं s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस आयोटा a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसमें से ये मेरा रियल पार्ट है और ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है। मुझे इमेजिनरी पार्ट चाहिए, दैट विल बिकम a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन at। अगर मैं आपसे कहता लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस at, देन आप क्या लेते हैं, यहाँ पे रियल पार्ट लेते हैं क्योंकि ये रियल पार्ट है। देन इट विल बिकम s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले ड्राइव हो रहे। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, बाय यूजिंग ऑफ डेफिनेशन, तो वो भी कर सकते थे, उसे देखते हैं। डेफिनेशन का यूज करके अगर मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन at निकालना है, तो उससे पहले आपने दो फॉर्मूले 12th क्लास में पढ़े थे। पहला e टू द पावर ax साइन bx का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा था आपने, e टू द पावर ax अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स। इसी तरह से ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का फॉर्मूला क्या पड़ा था, ई टू द पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी कॉस ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। इनका हम ट्रेनर यूज करने वाले हैं। तो कैसे देखना, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस बाय द डेफिनेशन 0 to infinity e to the power minus st into sin at dt। ये मेरे पास फॉर्म बनी, ये वाली अप्लाई करें तो मेरे पास क्या आएगा, इट इज e to the power minus st अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a साइन x, यानी कि माइनस s साइन at माइनस a cos at with the limit 0 to infinity. As I told you in the previous part, e to the power minus infinity is always equals to 0। तो जब मैं यहाँ पे infinity पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई सारा 0, तो मेरे पास अपर लिमिट तो 0 आ रही माइनस लोअर लिमिट क्या है 0। हमें पता है e टू द पावर 0 कितना होता है 1, लेकिन साइन 0 डिग्री कितना होता है 0 एंड कॉस 0 डिग्री 1 होता है ना ये। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे जब 0 माइनस लगा के लोअर लिमिट में, तो ये मेरे पास 1 हो गया, तो साथ में मेरे पास आया बाहर 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, जब इधर अप्लाई किया 0 तो ये 0 पूरा, यहाँ बचा माइनस ए और ये क्रॉस 0 1 हो गया, तो इट विल बिकम ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन at, जो मैंने आपको पहले शॉर्ट तरीके से बताया था। सिमिलरली कॉस वाला अप्लाई करके आप कॉस भी निकाल सकते हैं। तो ये थे सम कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज, जैसे कि लीनियर प्रॉपर्टीज है, लीनियर प्रॉपर्टी के बाद फर्स्ट शिफ्ट मेथड है, सेकंड शिफ्ट मेथड है। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बीएससी और बीटेक दोनों में, क्योंकि गेट के एग्ज़ाम में भी इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, और यूपीएससी में जो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं मैथमेटिक्स सेकंड सब्जेक्ट, उनके तो पक्का एक क्वेश्चन इसमें आता है। तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रॉपर्टीज़, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।